So laser consists of the first is the introduction, means what is laser. Then we'll study about the properties of laser. Then basics of laser means on which principle laser works, how the laser works, what are the basic parts of the laser, means regarding construction. There is elements of laser. Then what is optical resonator? In this way, in this lecture, we are going to study all these points. So laser stands for the light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. हाउ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट इज टेक्स प्लेस, आगे हम देखेंगे. What is stimulated emission? What are the different types of emissions? What is difference between that different types of emission? We'll study in this lecture. So you should remember laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Properties of laser. So laser is a highly monochromatic source of light. Do you know what is meant by monochromatic source of light? What is meant by monochromatic source of light? It emits. Only one color as appear. Hello. Yes, sir. Okay, no problem. It emits the light of single wavelength. Means we know that the white color, when we consider the light of white color, so it consists of the 7 colors, and we know that the each color have the different wavelength. हर color का different wavelength होता है. Red color का कुछ wavelength रहेगा, violet color रहेगा. So laser के अंदर क्या रहता है कि light emitted by laser is the monochromatic light, means is it emits the light of only one color. एक ही color का light emit करेगा. So it has only the single wavelength. The light emitted by laser have the single wavelength, and so that's why it is called as the monochromatic source of light. So we are going to compare why the laser is the special source of light. So laser has some properties, and by that properties, we can say that the laser is the special source than the conventional sources of light. जो conventional sources रहते हैं, उसके अंदर number of wavelength present रहती है light के अंदर, but laser के अंदर एक ही wavelength रहती है. See here diagram. डायग्राम के अंदर लिया व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो इट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स. कौन कौन से कलर्स रहते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एक्सेट्रा. So this is the first property. Then this is a highly coherent source of light. Means what is meant by the coherent source of light? So here the light emitted by laser are in same phase. सबका फेज जो रहता है कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है. मींस द क्रेस्ट ऑफ वन वेव coincides with the crest of other wave, or the trough of one wave coincides with the trough of another wave. So this type of source or this type of wavelengths, जिसके light source which emits this type of wavelength which are in same phase, it is called as the coherent source of light. देखो ये डायग्राम्स के अंदर देखो, इसका क्रेस्ट, ये सेकेंड रे जो था उसका भी क्रेस्ट, सब क्रेस्ट मैच हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है. हियर आल्सो ट्रफ यदि लिया तो ट्रफ सबका कोइंसाइड हो रहा है, एक ही लाइन के अंदर आ रहा है. So all the waves are in the waves emitted by laser are in same phase, so that's why it is called as a highly coherent source. कन्वेंशनल सोर्स रहता है उसके अंदर इस टाइप से नहीं होता है. The next one is the highly in the intensity of laser is very high. So laser can focus into narrow beams, so the energy is concentrated. लेजर जो रहता है ना वो नैरो बीम के अंदर ट्रेवल करता है, उसका डाइवर्जेंस जो रहता है लेजर का वो कम रहता है. So all the energy of laser is concentrated over the small area. So that's why the intensity of laser is more. So that's why laser is called as the highly intense source of the light. कन्वेंशनल सोर्स में क्या होता है? ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट लिया तो डाइवर्जेंस जो रहता है लाइट का वो ज्यादा होता है, तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो इंटेंसिटी कम होगा. So in laser, the laser can travel in the narrow beam. So that's why
The all the energy of laser is concentrated over the small area, so that's why the intensity of laser is very high. And because of this, the it can travel the long distance also. छोटा सा बीम रहता है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है. The last property is the highly directional. It is called as the unidirectional source. यानी कन्वेंशनल लाइट सोर्स लिया तो उसका डाइवर्जेंस ज्यादा रहता है. सी यहाँ पे डाइवर्जेंस किस हो रहा है, लाइट का ज्यादा हो रहा है. बहुत सारे डायरेक्शंस के अंदर ये जो कन्वेंशनल सोर्स है, लाइट बल्ब लिया है पे, सब डायरेक्शंस के अंदर एमिट हो रहा है. बट व्हेन वी कंसीडर द लेजर, लेजर ट्रैवल इन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल होता है. अ वेरी टाइट बीम विच वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड. छोटा सा बीम रहता है और सो दैट्स व्हाई इट कैन ट्रैवल द लॉन्ग डिस्टेंस आल्सो. एक ही डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल करता है, डाइवर्जेंस जो रहता है कम होता है. यहाँ पे देखो कंपेरिजन लिया, एक बल्ब लिया ऑर्डिनरी और ये लेजर लिया. सो लेजर इस टाइप से ट्रेवल करता है और बल्ब जो रहता है इस टाइप से. सिंपल एग्जांपल लेजर का लिया तो क्या है, अब जो पॉइंटर यूज करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर बताने के लिए लेक्चर वगैरह के अंदर, सपोज ऑनलाइन अपना. लेजर लाइट। हाँ, लेजर जो रहता है देखो हाथ के अंदर खेलने जैसा खिलौना रहता है, दैट इज बैटरी यस जैसा. सर, 10 रुपये में मिलता है। हाँ, वो जो 30-40 रुपए में मिलता। 30-40 रुपए में मिलता है. दैट इज दिस सिंपल वन ऑफ द टाइप ऑफ लेजर. नाउ देयर आर दी बहुत सारे पावरफुल लेजर्स भी रहते हैं. एक एग्जांपल के लिए बोला कि आपने हैंडल किया तो सर उसमें दूसरा बल्ब यूज किया गया रहता है या यही वो सिंपल कौन सा लेजर लाइट में सर दूसरे बल्ब यूज किया जाता है या यही बल्ब यूज किया जाता है? ये बल्ब नहीं रहता है. अभी आप हम आगे पढ़ेंगे लेजर के अंदर क्या रहता है. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर ओके गोइंग सर। टू स्टडी हाउ द लेजर वर्क्स, लेजर कैसे काम करते हैं वो पूरा स्टडी करेंगे. वी आर गोइंग ओके टू स्टडी आल्सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर आल्सो. टर्म्स रिलेटेड टू लेजिंग एक्शन. जो लेजिंग एक्शन है किस टाइप से लाइट प्रोड्यूस होता है लेजर्स के अंदर, तो उससे रिलेटेड टर्म्स हम स्टडी करेंगे. देन विल स्टार्ट द what is the principal work or on which principle laser works. So excited state of atom, do you know what is meant by the excited state of atom? So atom लिया हमने इस टाइप से डायग्राम के अंदर दिख रहा है. सो एटम जब नीचे की लेवल के अंदर है ना, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, वी नो दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ द we can say that is central part of atom is called as nucleus, which consists of the proton and neutron. Proton carries positive charge and the neutron carries no charge, neutral. So the total charge on the atom is the positive. ये central part जो रहता है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव रहता है. अराउंड दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस the electrons are revolve in the circular or elliptical orbit. Elliptical orbit के अंदर electrons revolve होते हैं. Electron carries the negative charge. Electron negative charge carry करते हैं. So when these electrons, ये जो orbit के अंदर electrons move हो रहे हैं around the nucleus, ये when the external energy is supplied to the atom, atom को यदि external energy supply किया मैंने, so then what happened? The energy of electron increases. That energy is absorbed by the electron because electron last orbit में orbits के अंदर रहते हैं. पहला पार्ट कौन सा रहता है, बाहर से देखा तो electrons के circles रहते हैं. So electron absorb the energy by photon है ना, light energy. When the light incident on atom, then the energy of photon, light के अंदर क्या रहता है, photons रहते हैं. light के particles जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम photons बोलते हैं. So ये जो light का energy रहता है वो electron एब्जॉर्ब करता है. सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होता है. सो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट. नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है. द एनर्जी, ये जो एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किया, दैट एनर्जी इज वेरी ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया हमने. सो देन व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रॉन गेट डिटैच फ्रॉम द एटम. एटम से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम, free electron. But suppose for example, listen me carefully, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करने के लिए है ना, एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए मुझे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी लग रहा है. फॉर एग्जांपल, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे. फॉर एग्जांपल, आई रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
एक्सटर्नल एनर्जी टू डिटैच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम से डिटैच करने के लिए, फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एटम से कितना एनर्जी लग रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So when I supply the 5 electron volt energy, external energy, then the electron becomes free. ये electron free हो जाएगा, orbit में नहीं घूमेगा, electrons free हो जाएगा. But when I supply the external energy 3 electron volt, 3 electron volt energy supply किया मैंने electron को, तो electron का क्या होगा? Electron detach होगा atom से? नो सर, डिटैच ही नहीं होगा वो। हाँ, डिटैच नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा? नो सर. उसका एनर्जी तो इंक्रीज हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सो इट विल जंप इनटू द नेक्स्ट ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? एटम के अंदर ही रहेगा, बट इट विल चेंज इट्स ऑर्बिट, या उसी जगह पे रहेगा. सपोज आई कंसिडर द लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है. आई हैव सप्लाई दी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा, बट इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, उसका एनर्जी इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इंक्रीज हुआ है ना, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ एटम, एटम का पार्ट है, सो एटम का एनर्जी इंक्रीज होगा, एटम का पार्ट एनर्जी इंक्रीज होगा. सो वी कैन से दैट द एटम गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट. एटम का एनर्जी इंक्रीज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता तो इट इट बिकम्स फ्री, बट इलेक्ट्रॉन डिटैच नहीं हुआ, एटम के अंदर है, बट विथ हायर एनर्जी, उसका एनर्जी इंक्रीज हो गया. सो एटम का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो एटम का भी एनर्जी इंक्रीज हुआ. तो सच अ एटम इज कॉल्ड एज एक्साइटेड एटम. इस टाइप के एटम को क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेड एटम. और एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. क्या बोलेंगे हम? एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम? यस सर। क्योंकि बहुत बार यूज करने वालों में एक्साइटेड एटम अभी इसके आगे. देन लाइफ टाइम ऑफ एटम. सो ये जो एटम एक्साइट होके आगे के ऑर्बिट में गया, सपोज और वट एवर में भी इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में ही कंसिडर करते हैं, लास्ट ऑर्बिट में ही है. सर लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, एटम गोज इनटू एक्साइटेड स्टेट. एटम कहीं पे जाता नहीं है. जनरली हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एटम गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट. यानी कोई ऐसा स्टेट वगैरह नहीं रहता कि वापस चला जाएगा एटम, एटम वहीं पे रहता है, बट उसका एनर्जी इंक्रीज होता है, तो उसको बोलेंगे हम एक्साइटेड एटम. उसको क्या बोलेंगे? एटम इन एक्साइटेड स्टेट. सो अभी कितनी देर रहेगा एक्साइटेड स्टेट में? सो वेरी फ्यू सेकेंड्स, बहुत कम टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है. ओके, सो एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद एटम एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम के लिए रहता है, यानी एटम का एनर्जी कितने टाइम के लिए इंक्रीज होता है? थोड़े देर के लिए इंक्रीज होता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड, एटम कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम फिर से रिटर्न आ जाता है. यहाँ पे जो पहली डायग्राम मैंने इसमें ऑर्बिट्स नहीं बताए, एक एटम लिया, दिस इज एटम. व्हेन आई सप्लाई द एक्सटर्नल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हुआ. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हो कैसे बताने का, इसलिए मैंने रेड कलर से बताया, ऑर्बिट बताया कि एनर्जी इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हुआ. सो नाउ द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट. ओके, एटम कहीं पे जाता नहीं, उसी जगह पे रहता है, उसका एनर्जी इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट. सो कितने टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में रहेगा एटम? सो फॉर वेरी फ्यू सेकेंड्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड, द एटम कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. फिर से उसका एनर्जी कम हो जाएगा, एटम का एनर्जी फिर से कम हो जाएगा, थोड़े सेकेंड्स के लिए उसका एनर्जी इंक्रीज होता है, एंड वी कैन से दैट द एटम इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम पीरियड, द एटम कम्स टू द ग्राउंड स्टेट. फिर से उसका एनर्जी कम हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट में आ गया, फिर से नहीं यहाँ पे आ गया. यहीं पे इलेक्ट्रॉन जगह नहीं छोड़ रहा है, उसका एनर्जी इंक्रीज हुआ. आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि एनर्जी इंक्रीज हो गया. थोड़े टाइम के बाद फिर से उसका एनर्जी कम हो जाएगा, नहीं यहाँ पे आ जाएगा नहीं, वहीं पे रहेगा, एनर्जी कम हो जाएगा. नाउ द टाइम spent by atom, the time spent by atom in excited state, that is called as the lifetime of atom. What is the lifetime of atom? The time for which atom stay in the excited state. जितने टाइम के लिए atom excited state में रहेगा, so that is called as the lifetime of atom. After completion of its lifetime, it comes to the ground state.
उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया कि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हुआ एटम का व्हेन इट एब्सॉर्ब द एक्सटर्नल एनर्जी, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यानी एटम का एनर्जी इंक्रीज होता है। थोड़ी टाइम के लिए एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, एनर्जी इंक्रीज होता है, उसका एनर्जी कंप्लीट, एनर्जी जो इंक्रीज होता है ज्यादा टाइम नहीं रहता है, थोड़ा सा टाइम रहता है, वो कंप्लीट करने का इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। सो समटाइम्स व्हाट हैपन कि एटम व्हेन कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, यानी उसका एनर्जी जब कम होता है तो क्या करता है, वो फोटोन एमिट करता है। इट एमिट्स द फोटोन। एनर्जी कैसे कम होता है उसका, तो इट एमिट्स द फोटोन एंड इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। whenever it comes from the excited state to ground state, it emits the photon emit करता है। जो ज्यादा की यस सर। एनर्जी थी, उसकी ज्यादा की एनर्जी थी, वो एमिट कर देता है। सो क्या मिलेगा आपको, फोटोन एमिट करते हैं ना, लाइट मिलेगा आपको, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, एमिट करते हैं। देखो ये एटम जो था, ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो था ये यहाँ पे था, इसका एनर्जी वहीं पे रहता है, बट एनर्जी इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे शो किया। सो एनर्जी इंक्रीज होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, एक फोटोन एमिट करेगा। सो इसका एनर्जी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद whenever it jumps from higher energy state to lower energy state means ground state, so it emits the photon of energy h, energy का photon emit करता है। So what is lifetime of atom? The time spent by atom in excited state, it is called as lifetime of atom. In normal excited state, lifetime of atom is 10 raised to minus 8 seconds. इतने टर्म कम टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है, 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड्स, 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड्स, इतना कम ड्यूरेशन हो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज द लाइफ टाइम ऑफ एटम। व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ एटम? द टाइम स्पेंड बाय एटम इन एक्साइटेड स्टेट, it is called as the lifetime of atom. Do you understand? यस सर। Yes, sir. So now metastable state, what is meant by the metastable state? So अभी हमने देखा कि when atom goes to the excited state, so it spend very less time in that state. नॉर्मल स्टेट जो रहती है उसको नॉर्मल स्टेट बोलते हैं, तो कम टाइम स्पेंड करता है। कितना टाइम स्पेंड करता है, 10 रेज टू माइनस 8 सेकेंड्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में है तो लोअर स्टेट में आ जाएगा बाय एमिटिंग द फोटोन, फोटोन एमिट कर। Now, what is meant by the metastable state? Metastable state यानी there are some states where atom spend somewhat more time than its normal lifetime. उसका जो normal lifetime रहता है कितना रहता है, 10 raised to minus 8 seconds. So 10 raised to minus 8 seconds की बजाय वो ज्यादा टाइम रुकता है। कुछ जो states होती है, there are some states in which the atom spend somewhat more time than its lifetime. That is called as the metastable state. In metastable state, the lifetime of atom is 10 raised to minus 3 seconds. The energy state in which atoms spend more time than its normal energy state है ना, normal lifetime जो रहता है उससे ज्यादा टाइम वो spend करता है, and that state is called as the metastable state. The lifetime of atom in metastable state is 10 raised to minus 3 seconds. ज्यादा है ना, 10 raised to minus 8 था तो अभी वो 10 raised to minus 3 seconds के लिए रुक रहा है, यानी यानी ज्यादा 10 लाख गुना ज्यादा। हाँ ज्यादा टाइम के लिए रुक रहा है। It spends somewhat more time in that state. Just like the ट्रेन अगर रहती ना अपना, सो ट्रेन स्टार्ट हुई बॉम्बे से, नासिक की तरफ आ रही है, तो कसारा में कम टाइम रुकेगी, बट इगतपुरी में आके ज्यादा टाइम रुकती कि नहीं। तो इगतपुरी को क्या बोलते हैं हम, जंक्शन बोलते हैं ना। जंक्शन स्टेशन जो रहते हैं वहां पे ट्रेन स्पेंड समवॉट मोर टाइम देन दी नॉर्मल स्टेशन। नासिक के अंदर कम टाइम रुकेगी, फिर मनमाड़ के अंदर ज्यादा टाइम रुकती है। सो दैट मनमाड़ एंड इगतपुरी इज कॉल्ड एज द मेटास्टेबल स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे दिया, जब पे ज्यादा टाइम रुकती है ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन। सिमिलरली वेयर द एटम्स, द स्टेट इन व्हिच द एटम्स स्पेंड मोर टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द मेटास्टेबल स्टेट। कितना लाइफ टाइम रहता है मेटास्टेबल स्टेट में, 10 रेज़ टू माइनस। एमसीक्यू वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको मालूम होना चाहिए। मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम कितना रहता है, 10 रेज़ टू माइनस। नॉर्मल स्टेट में लाइफ टाइम कितना रहता है एटम का, 10 रेज़ टू माइनस 8।
seconds. Then population inversion. So what is population inversion? So just we studied that when the atom comes to the lower state after completion of its lifetime, when it comes to the lower state, हाँ उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर से लोअर स्टेट के अंदर आता है या तो ग्राउंड स्टेट में आता है. सो वेन एवर एटम कम्स टू द लोअर स्टेट इट एमिट्स द फोटोन. जब भी वो लोअर स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में से लोअर स्टेट में आएगा तो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, यानी क्या करता है, लाइट एमिट करता है. सो लेजिंग एक्शंस के अंदर क्या चाहिए, लेजिंग, ये जो फोटोन एमिट होता है ना, वो लेजर्स के अंदर यूज करते हैं. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बाद में बताता हूँ. हाँ, वो जो फोटोन रहता है दैट इज लेजर का लाइट रहता है. सो इफ द हायर एनर्जी स्टेट इज एम्प्टी, हायर एनर्जी स्टेट एम्प्टी है, तो लेजिंग एक्शन होगा क्या, लाइट मिलेगा आपको, लाइट मिलेगा आपको. लाइट किससे मिलता है, फोटोन कब एमिट होता है, जब हायर स्टेट का एटम लोअर स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है ना, लाइट एमिट करता है. अब सपोज हाँ हायर, सर. हाँ हायर स्टेट के अंदर कोई एटम ही नहीं है, इफ देर इज नो एटम इन द हायर स्टेट, सो लेजिंग लाइट मिलेगा आपको आउटसाइड में. नो सर, क्योंकि नो वो सर. आएगा ही नहीं ऊपर से नीचे, तो मिलेंगे ही नहीं. बट यदि एम्प्टी है, उसका हायर स्टेट एम्प्टी है, तो लाइट नहीं मिलेगा. सो लाइट कब मिलेगा, जब हायर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम यदि ज्यादा है तो जब भी वो नीचे आएंगे तो लाइट एमिट करेंगे. सो टू स्टार्ट द लेजिंग एक्शन, व्हाट इज नेसेसरी, टू हैव द मोर नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट. हायर एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा एटम्स होंगे, देन ओनली लेजिंग इज पॉसिबल, लेजिंग एक्शन इज पॉसिबल. लेजिंग एक्शन है ना, लाइट मिलना पॉसिबल है. कब, जब हायर स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम्स होंगे. जनरली द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ एटम इज टू स्टे इन द ग्राउंड स्टेट. नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है एटम के, ग्राउंड स्टेट के अंदर रहने का. सो to have the more number of atoms in the excited state than the lower energy state, यानी ग्राउंड स्टेट्स के अंदर कम एटम है और हायर एनर्जी स्टेट के अंदर ज्यादा एटम है, so then the lasing action is possible. What is the normal tendency of atom, to spend the time in the ground state. तो नॉर्मल टेंडेंसी के अलावा ये ज्यादा ज्यादा एटम्स कहाँ पे हो रहे हैं, हायर स्टेट के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इनवर्शन. पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा रहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है. But the case in which the population of atom is more in the excited state than the ground state, this is called as the population inversion. Generally population कहाँ पे बढ़ता है, ground state के अंदर ज्यादातर atom रहता है. But when the atoms, more number of atoms in the excited state than the ground state, inverse हो गया ना, ground state में ज्यादा चाहिए थे but excited state में ज्यादा है, तो inverse हो गया, general normal tendency के opposite में हो गया. So this is called as the population inversion. You have more number of atoms in the excited state than the lower state, it is called as the population inversion. So population inversion is compulsory to start the lasing action. Lasing action start करने के लिए population inversion compulsory है. यदि population inversion नहीं हुआ तो lasing action start ही नहीं होगी, light नहीं मिलेगा आपको. So this is very important term. So मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, जो terms related with the lasing action. Lasing actions के लिए जो terms लगती है वो हम study कर रहे हैं. Do you understand what is population inversion? Yes, I understand. Now optical pumping. So what is the natural tendency of atom? The natural tendency of atom to stay in the ground state. So but to start the lasing action, we require the number of atoms, more number of atoms in the excited state. So more number of atom excited state में चाहिए तो कैसे जाएंगे वो, उसको external force लगाना पड़ेगा ना आपको. Atom कैसे जाता है excited state में, when it absorb the external energy. एक्सटर्नल एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तभी एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. सो द प्रोसेस इन विच जनरली एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स. थर्मल एनर्जी सप्लाई किया तो भी एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया तो भी एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. बट generally we use the optical pumping, and optical pumping means we use the light to raise the atom from ground state to
हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाने के लिए हम क्या जनरली यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं। लाइट इज रिलेटेड विद ऑप्टिक्स, सो लाइट यूज कर रहे हैं। इसलिए इस टाइप का जो पंपिंग है, पंपिंग मीन्स टू रेज द एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज पंपिंग। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल पंपिंग? the when we raise the atom from the lower energy state to higher energy state with the help of external light, with the help of external light energy, that is called as the ऑप्टिकल पंपिंग। यानी फोटोन पास करेंगे हम उसमें से, तो फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम और इट गोज इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। सो ये जनरल कैसा, ये कैसे हुआ? दिस इज द आर्टिफिशियल सिचुएशन। The artificial situation of population inversion can be achieved by continuously raising the atom from ground state to higher energy state with the help of external photon. Is called as optical pumping. एक्सटर्नल लाइट के हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट के एटम को एक्साइटेड स्टेट में रेज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पंपिंग विद द हेल्प ऑफ फोटोन। फोटोन मींस लाइट, लाइट मींस ऑप्टिक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पंपिंग। यदि आप विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से यदि आप एटम को एक्साइटेड स्टेट में डाल तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पंपिंग। थर्मल एनर्जी सप्लाई करके यदि एटम को आप हायर एनर्जी स्टेट में रेज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल पंपिंग। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? फोटोन यूज कर रहे हैं पंपिंग के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एक्टिव सिस्टम। फिर जो लेजिंग एक्शन है, लेजिंग एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्शन लगता है। सो सब मीडियम में पॉपुलेशन इन्वर्शन पॉसिबल है, सब मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्शन पॉसिबल है? नो। So there are some materials in which the population inversion is takes place. Means we can say that some mediums are there in which population inversion is possible. It is called as the active system. जिसके अंदर population inversion होगा उसके अंदर लेजिंग एक्शन होगा, population inversion नहीं होगा तो लेजिंग एक्शन नहीं होगा। So the medium in which the population inversion is possible, हर मीडियम में नहीं होगा ना पॉसिबल। सो जिस मीडियम में, जिस मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव सिस्टम। The medium in which population inversion is possible is called as the active system. So these are the terms related with the lasing actions. कौन कौन सी terms देखी हमने? पहले हमने स्टडी किया कि what is meant by the excited state and what is meant by ground state. How the atom goes into the excited state. Excited state में atom कैसे जाता है? And we studied about what is a lifetime. What is the lifetime of atom in the normal state? What is the metastable state? Metastable state क्या होती है? And then we studied about that is optical pumping. Then we studied about population inversion. Population inversion means to have the more number of atom in excited state than the lower energy state. Then only lasing action is possible. So population inversion is compulsory for lasing action. Then how the population inversion is takes place? The population inversion can be achieved by using the optical pumping. Optical pumping से हम atom number of atoms higher energy state के अंदर increase कर सकते हैं, because we know that कि atom का लाइफ टाइम कंप्लीट हो गया फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो कंटिन्यूसली पंपिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली रेजिंग द एटम्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, देन ओनली द पॉपुलेशन इनवर्शन इज मेंटेन। या तो क्या होगा, स्टार्ट किया मैंने, देयर आर 10 एटम्स इन द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, तो 10 फोटोन एमिट्स करेंगे एंड दे विल कम टू द ग्राउंड स्टेट, तो रुक जाएगा लेजिंग एक्शंस। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है पंपिंग का। नीचे आया कि फिर से उसको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसको एक्साइटेड स्टेट में डालेंगे, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में से नीचे आएगा, फिर से उसको रेज करके ऊपर डालेंगे, इस टाइप से। सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल पंपिंग। Then we studied the active system also. So these are the terms related with the lasing action. Now there are two types of emissions. हमने हमारा वर्ड जो लेजर था उसके अंदर क्या लिखा है? The emission stimulated, the light amplification by stimulated emissions. So what is meant by the stimulated emission? So before going to study the stimulated emission, first we'll study about the spontaneous emission. What is spontaneous emission? So see here, there are two energy states. E1 is, suppose consider that E1 is the ground state and this is the excited. E2 is the excited state. दो energy states है. Consider an atom in the higher state E2. अभी atom कहाँ पे consider किया मैंने? Higher energy state के अंदर.
का E2 के अंदर जो लाइफ टाइम था एटम का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ टाइम इन द हायर एनर्जी स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसका जो भी लाइफ टाइम होगा एटम का में 10⁻⁸ सेकेंड्स, ये लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, दिस एटम कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। ये एटम ऑटोमेटिक विदाउट एनी फोर्स, उसको कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं, उसका लाइफ टाइम जैसे कंप्लीट होगा वो नीचे के स्टेट में आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। So whenever it comes to the lower energy state, see, when it comes to the lower energy state, ये देखो नीचे के एनर्जी स्टेट में आना है। So whenever it comes to the lower energy state, it emits the photon। ये क्या करता है, फोटोन एमिट्स करता है। ये जब एटम उसका लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद when comes to the lower energy state, it emits the photon of energy। कितने एनर्जी का फोटोन, एच वी नहीं चाहिए था, न्यू है, एच। H mu. कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट्स करेगा, तो डिफरेंस विद दिस एनर्जी स्टेट, ये E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस होगा उतने एनर्जी का फोटोन। देखो सपोज E2 का एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। जो डिफरेंस है दोनों स्टेट के बीच में उतने एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। कैसे, उसका लाइफ टाइम कंप्लीट है, वी नो दैट नॉर्मल स्टेट के अंदर उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होगा कि वो ऑटोमेटिक आता है, कोई बोलता नहीं उसको नीचे आ, उसका नेचुरल टेंडेंसी है टू कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, टू स्टे इन द ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो इट एमिट्स द फोटोन ऑफ एनर्जी h nu दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी फोटोन एमिट कर रहे हैं, क्या करेगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लाइट मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। it emits the light, it emits the radiation। Lifetime of excited state is 10 raised to minus 8 or 10 raised to minus 9 seconds. Do you understand Yes, what is sir. spontaneous emission? Sir. Yes, sir. So, so spontaneous emission में जो लाइट मिलता है आपको आउटपुट के अंदर, अभी ये जो एटम नीचे आया तो वी हैव गॉट वन फोटोन, ये एटम नीचे आएगा तो और एक फोटोन मिलेगा, यानी और एक रेडिएशन मिलेगा, ये वाला आएगा तो और एक रेडिएशन मिलेगा। इस टाइप से लाइट तैयार होता है। लाइट इज द कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ वेव्स का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, लाइट। तो जब ये सब एटम्स नीचे आएंगे तो आपको लाइट मिलेगा। सो ये जो रेस थे, एक एटम क्या करेगा, एक वेव या तो एक रे एमिट करेगा जब भी आएगा नीचे। सो ऑल द रेज आर नॉट इन सेम फेज। ये जब आएगा तो इसका फेज अलग रहेगा, इसका फेज अलग रहेगा, इसका फेज अलग रहेगा। All the rays emitted in spontaneous emission are not in same phase, or the light emitted in spontaneous emission is not a monochromatic light। वो monochromatic light भी नहीं रहेगा, वो coherent source of light भी नहीं रहेगा। So इस यूनिडायरेक्शनल भी नहीं रहेगा, इसका जो लाइट एमिट हो रहा है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। सो द लाइट एमिटेड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस एमिशन, इट्स नॉट अ लेजर। उसको हम लेजर बोलेंगे क्या, नहीं, बिकॉज वो लेजर की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो द लाइट एमिटेड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द conventional, just like the conventional light emitted by the conventional source of light। एलईडी, एलईडी जो यूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिस्प्ले करने के लिए, पॉइंटर लाइट, पता है ना एलईडी आपको। हाँ सर। हाँ, तो वो जैसे लाइट एमिट करता है Yes, sir, वैसे right. लाइट आपको, दैट इज नॉट लेजर। इट एमिट्स द लाइट जस्ट लाइक द एलईडी, एलईडी जैसा लाइट एमिट करेगा, लेजर नहीं रहेगा। जो लाइट मिल रहा है आपको आउटपुट में वो क्या रहेगा, लेजर नहीं रहेगा, कॉमन लाइट रहेगा, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। लेजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। डू यू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस एमिशन? Yes, sir. सो नाउ विल स्टार्ट द स्टिमुलेटेड एमिशन। सो लेजर के अंदर कौन सी एमिशन यूज करते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करते हैं। लेजर का लॉन्ग फॉर्म के अंदर लिखा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। So here, see here, there are again two energy states. This is E1 means ground state and this is the excited state. But here, the excited state is the metastable state. यहाँ पे कौन सी स्टेट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, मेटास्टेबल स्टेट। सो मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है कि एटम स्पेंड समवट मोर टाइम देन इट्स नॉर्मल लाइफ टाइम, नॉर्मल लाइफ टाइम से ज्यादा लाइफ टाइम रहता है यहाँ पे। तो एटम स्पेंड समवट मोर टाइम, and because of that
the density of atom, number of atoms in excited state, in metastable state increases. जंक्शन के ऊपर जब जाओगे आप तो ज्यादा ट्रेन दिखती है आपको, एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन रहती है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ट्रेन स्पेंड मोर टाइम एट द जंक्शन स्टेशन, जो जंक्शन रहता है वहां पे ट्रेन ज्यादा देर रुकती है, तो जो जब आपकी ट्रेन रुकती है तो ऑलरेडी वहां पे एक आध दूसरी ट्रेन रुकी रहती है। और नासिक का स्टेशन लिया तो वहां पे जनरली आप देखोगे एक बार में एक ही ट्रेन दिखती है आपको, बिकॉज कम टाइम के लिए रुकती है तो आपकी ट्रेन आएगी तो पहली ट्रेन निकल जाती है जनरली। सो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से एटम का डेंसिटी इंक्रीज होता है, मींस द पॉपुलेशन इनवर्शन इज टेक्स प्लेस इन द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट पॉपुलेशन to have the more number of atoms in the excited state than the lower energy state, it is called as the metastable population inversion. The population inversion generally metastable state. So here number of atoms in the metastable state. So जब तक इसका लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं होगा ये नीचे आएगा नहीं आएगा। 10⁻³ सेकेंड का जो टाइम है उतना टाइम कंप्लीट स्पेंड करेगा, देन इट कम्स टू द लोअर स्टेट। बट when I supply the external photon यदि मैं सप्लाई करता हूँ इस मीडियम में से, एक्सटर्नल फोटोन में सप्लाई कर दो ऐसे, ये ऐसे इंसिडेंट फोटोन है ना, एक्सटर्नल फोटोन, ये मीडियम जो है इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल फोटोन में सप्लाई कर रहा हूँ। सो दिस एक्सटर्नल फोटोन फोर्स दिस एटम, ये जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम था इसको फोर्स करेगा to make transit from higher energy state to lower energy state, stimulate करेगा इस atom को to jump into the ground state. It will force this atom in the metastable state to make transit from higher energy state to lower energy state. उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होने के पहले ही उसको खींच के नीचे लेके आएगा। कौन लेके आएगा? एक्सटर्नल फोटोन। एक्सटर्नल फोटोन यदि मैंने पास किया है ऐसे, so that external photon will force this atom to make the transit from higher energy state to lower energy state before completion of its lifetime. इसका लाइफ टाइम कंप्लीट होने के पहले ही इसको खींच के नीचे लेके आएगा। कैसे आ रहा है नीचे? एटम कैसे आ रहा है नीचे? फोर्सफुली आ रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है उसको, स्टिमुलेट कर रहा है उसको, फोर्स लगा रहा है कि काम चल नीचे, लेक्चर चालू हो गया, आजा नीचे। मिशन में क्या था, वो खुद होके आ रहा था नीचे, यहाँ पे इसको फोर्सफुली नीचे लाया गया। So see first, then ask the difficulty. So whenever it comes to the ground state, ये ऊपर से नीचे external photon, with the help of external photon. So whenever it comes to the lower state, it emits the photon. एक photon emit करेगा of energy h nu energy को photon emit करेगा। So देखो, एक एक्सटर्नल फोटोन और एक ट्रांजिशन की वजह से एक फोटोन मिला, तो आउटपुट में कितने फोटॉन्स मिलेंगे मुझे? आई विल गेट द टू दो फोटॉन। फोटोन। हाँ, एक इंसिडेंट फोटोन था जो एक्सटर्नल फोटोन, और इसकी वजह से एक ट्रांजिशन की वजह से एक फोटोन मिला था। हियर आई विल गेट द टू फोटॉन्स। अभी ये जो मीडियम था इसमें से कितने फोटॉन्स ट्रेवल करेंगे? ये वाला एटम नीचे आने के बाद दो फोटॉन्स ट्रेवल करेंगे। नाउ तो लाइट ज्यादा मिलेगा सर? 2 मिनट कंप्लीट करना। अभी ये दो फोटॉन्स कितने एटम्स को नीचे लेके आएंगे? पहले एक ही फोटोन ट्रेवल कर रहा था तो आई गॉट टू फोटॉन्स, एक एटम का ट्रांजिशन हुआ, आई गॉट टू फोटॉन। अभी आगे कितने फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं? दो फोटॉन्स। ये दो फोटॉन्स दो एटम्स को नीचे लेके आएंगे। यस सर। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिलेंगे मुझे? 4। बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन 2 फोटॉन्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रीवियस फोटॉन्स, ऐसे 4 फोटॉन्स मिलेंगे। ये 4 फोटॉन जब आगे जाएंगे तो कितनी ट्रांजिशंस करेंगे? 4 ट्रांजिशंस करेंगे। आउटपुट में कितने फोटॉन्स मिलेंगे मुझे? 8। 8 जब आगे जाएंगे तो कितने फोटॉन्स मिलेंगे? 16। So in this way, multiplication of photons is takes place. इस स्टेज से मल्टीप्लिकेशन होता है फोटॉन्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो आउटपुट के अंदर बहुत ज्यादा लाइट मिलेगा मुझे। आई विल गेट मोर लाइट इन द आउटपुट। हियर इन दिस टाइप ऑफ एमिशन, इस टाइप की जो एमिशन रहती है, so the emitted photon due to transition and the incident photon जो
एक्सटर्नल फोटोन यूज किया, और जो ट्रांजिशन के अंदर फोटोन मिला, बोथ हैव द सेम वेवलेंथ, दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे आर इन सेम फेज। ये जो एक्सटर्नल फोटोन था और यहाँ पे जो ट्रांजिशन के अंदर फोटोन एमिट होगा, उसका वेवलेंथ सेम रहेगा, उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, उसका फेज जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। सो आउटपुट के अंदर जो लाइट मिला वो कैसा मिलेगा मुझे? Same wavelength, same intensity. Huh? The light emitted by this stimulated emission satisfy the properties of laser. Laser की properties क्या है? It's a monochromatic source of light. Then it is coherent, highly coherent. It is unidirectional. ये सब properties satisfy करेगा जो light emit होगा. So this light is called as the laser. उसको क्या बोलेंगे हम? Laser. Atom in this state can't jump to the lower state at their own. खुद होके नहीं आएगा नीचे. When a photon of suitable frequency arrive, it makes the atom in the metastable state. Transition करेगा यहाँ पे. The emitted photon is in the coherence with the incident photon. Incident photon के साथ coherent रहेगा. Emitted photons are coherent, means they are in same phase के अंदर मिलेगा. See ये एक इंसिडेंट फोटोन था, ये एक्साइटेड स्टेट में, देखो इसके आजू बाजू में ग्रीन सर्कल लिया है, मींस दिस एटम इज इन इट एक्साइटेड स्टेट. ये एटम कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में. व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट इट बिकम्स नॉर्मल एटम, एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा. देखो सर्कल जो था ग्रीन निकल गया. तो व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स वन मोर फोटोन. ये इंसिडेंट फोटोन, ये वाला इंसिडेंट फोटोन, और इसने एक एमिट किया नया फोटोन. सो वी हैव गॉट द टू फोटॉन्स. Do you understand what is the stimulated emission? Yes, sir. So the laser work Yes, on sir. the principle of stimulated emission. Stimulated emission के principle पे laser work करते हैं. Then what are the different elements of laser? Laser का construction यदि कर रहे हैं आप, तो क्या क्या parts रहते हैं lasers के? What are the एक general laser, कोई भी laser लिया तो क्या parts रहते हैं lasers के? So first part is the active medium. Active medium is necessary. Active medium होगा तभी उसके अंदर lasing action होगा. Population inversion is possible in active medium only. तो एक्टिव मीडियम रहेगा यहाँ पे, तो गैस रहेगा या तो कुछ सॉलिड मटेरियल रहेगा, कुछ भी हो सकता है. देन एक्साइटेशन मैकेनिज्म, ये जो एटम्स ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेंगे एक्टिव मीडियम के अंदर, इसको हमको क्या करना है? एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लाइट. सो एक्सटर्नल लाइट या वट एवर में भी, थर्मल एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, उसके लिए कुछ तो भी मैकेनिज्म रहेगा, एक्साइटेशन मैकेनिज्म रहेगा. एक्साइटेशन मैकेनिज्म का क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट के एटम को एक्साइटेड स्टेट में रेज करेगा. आर्टिफिशियल पंपिंग के लिए, ऑप्टिकल पंपिंग के लिए हम एक्साइटेशन मैकेनिज्म यूज करेंगे. देन एट द टू एंड ऑफ दिस व्हाटएवर में भी, सपोज एक ग्लास ट्यूब था, इसके अंदर एक्टिव मीडियम रखा है, तो उस ग्लास ट्यूब के वन एंड के ऊपर क्या रहता है? टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर. 100% लाइट इससे रिफ्लेक्ट होता है. सो टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर रहता है. क्यों रहता है मैं बताऊंगा. एक साइड में 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर रहता है, और एट वन अनदर एंड, दूसरा एंड जो रहता है वहां पे क्या रहता है? पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर. पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है ना, इसके ऊपर कोटिंग कम क्या है ऐसा नहीं रहता है. इसका जो बीच का पार्ट है, ये वाला सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे कोटिंग नहीं रहता है, यानी ये ट्रांसपेरेंट रहता है, जस्ट लाइक द ग्लास. सो व्हेनेवर द फोटोन इंसिडेंट इन दिस पार्ट, ये पार्ट के ऊपर जब इंसिडेंट होगा तो आउटसाइड में चला जाएगा, और ये पार्ट के ऊपर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होगा. When the photon incident at the central part of this mirror, so that is the transparent part. वो transparent part रहता है, इसमें से light बाहर चला जाएगा. But when photon incident, the any other part excepting the central part, central part छोड़ के कोई भी part के ऊपर photon incident होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा. वो mirror है, वो reflect होके इधर आएगा. So this is called as the partially reflecting. Why it is called as partially reflecting? Because central part is not reflecting. Central part reflecting नहीं है, transparent. Do you understand what is partially reflecting? नहीं तो लाइट बाहर कैसे आएगा? यदि मैं 100% मिरर यूज करूंगा तो लाइट मिलेगा आउटपुट में? नहीं.
सो यहाँ पे बीच का पार्ट जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जिसमें से लाइट बाहर आता है। यहाँ पे पहले फोटोन इंसिडेंट हुआ तो बाहर नहीं आएगा और रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। सो दीज आर द बेसिक components of the laser. Hmm? Do you understand? Yes, हेलो sir. सर, Understand. एक सर एक So, स्टूडेंट वेटिंग में है सर, ऐड कर दीजिए उसको। क्या? ओके, अपना लेक्चर देखते सर ना। कोई चलो अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। Two parallel mirrors placed around the gain medium. Light is reflected by the mirror back into the amplifier. So mirror के यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशंस के लिए यूज करते हैं। स्पिनिंग मोटर्स, मॉड्यूलेटर्स, फिल्टर्स, एब्जॉर्बर बाद में देखते हैं। ऑप्टिकल रेजोनेटर। सो व्हाट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर? जस्ट 1 मिनट। ये मिरर क्या काम करता है? ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर मीन्स लाइट को एम्पलीफाई करता है। मिरर क्यों यूज करते हैं हम? टू एम्पलीफाई द लाइट। ज्यादा लाइट मिलना चाहिए ना आउटपुट के अंदर, तो उसको एम्पलीफाई करेंगे। हमारे लेजर का लॉन्ग फॉर्म क्या था? स्टिमुलेट लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। सो एम्पलीफिकेशन का काम क्या करते हैं? कौन करता है? मिरर्स करते हैं, दोनों मिरर्स करते हैं। So that assembly of mirrors is called as the optical resonator. So optical resonator कैसे काम करता है? See, this is the first diagram, A diagram के अंदर एक फोटोन, एक्सटर्नल फोटोन पास किया, आई गॉट दी टू फोटॉन्स, दो फोटॉन्स मिले। वे दोनों फोटॉन्स का ये मिरर के ऊपर जाएंगे, आउटपुट मिरर, बीच का पार्ट जो रहता है ट्रांसपेरेंट रहता है। सो ये मिरर पे जाने के बाद क्या होगा? ये लाइट जो था वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना? जैसे सपोज सेंट्रल पार्ट पे गिरा तो बाहर चला जाएगा, बट सेंट्रल पार्ट के ऊपर नहीं गिरा तो रिफ्लेक्ट होगा। तो हम कंसिडर करें कि सेंट्रल पार्ट के ऊपर नहीं गिरा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? ये देखो, ये दो थे, दो रेज थे, दो में से देखो एक बाहर चला गया सेंट्रल पार्ट, ये दोनों जो थे रिफ्लेक्ट हो गए। ये जब दोनों रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगे सी डायग्राम के अंदर, सो कितने ये जब पास हो गए इस मीडियम में से, इस मीडियम में से पास हो गए तो क्या करेंगे? और ट्रांजिशंस हो गए वहां पे, और ट्रांजिशंस हो गए तो और फोटॉन्स मिलेंगे मुझे। सो नाउ आई हैव द फोर फोटॉन्स बिकॉज ऑफ दिस टू फोटॉन्स। ये दो फोटॉन्स की वजह से आई गॉट द फोर फोटॉन्स। अभी मीडियम में, एक्टिव मीडियम में से कितने फोटॉन्स पास हो रहे हैं? चार फोटॉन्स पास हो रहे हैं। सो आई विल गेट द 8 फोटॉन्स। यहाँ पे कितने फोटॉन्स मिलेंगे मुझे? 8 फोटॉन्स। 8 में से एक चला गया, ये 7 फोटॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं इसमें से, एक्टिव मीडियम में से। तो 7 फोटॉन्स कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा? 14 फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जो सेंट्रल पार्ट पे इंसिडेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, ये फिर से ट्रेवल करेगा इसमें से, फिर ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, ऐसे कुछ पार्ट चला जाएगा, बाकी का पार्ट फिर से ट्रेवल करेगा इसमें से। सो इन दिस वे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स टेक्स प्लेस। सो लाइट यहाँ पे देखो कितने कितने फोटॉन्स हो गए। इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी जब बहुत सारे रोटेशंस हो गए इसके, बहुत सारे चक्कर मार लिए इसने। सो आई विल गेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो ये फोटॉन जो रहेंगे सेंट्रल पार्ट में, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है मिरर का, वहां से आउटसाइड में जाएंगे। सो इन दिस वे द ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम का लेंथ इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल एक्टिव मीडियम का लेंथ कितना है? ये ऐसे लेके आता है, दोनों मिरर के बीच में क्या रहता है? एक्टिव मीडियम। कितना लेंथ है? सपोज फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोटोन ट्रेवल्स, तो पहले ट्रेवल्स में कितना सेंटीमीटर चला? 5। ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आया तो कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गया 15 सेंटीमीटर, इधर से इधर गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर आया 25 सेंटीमीटर। तो एक्टिव मीडियम का लेंथ इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर ने क्या किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए। एक्टिव मीडियम का लेंथ इंक्रीज किया मीन्स वो नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगा ना, ऐसे इंक्रीज नहीं होता है, वर्चुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना ही 5 सेंटीमीटर। बट बहुत सारे चक्कर मारेगा तो कितना ट्रेवल हुआ? जितना ट्रेवल हुआ उतना लेंथ एक्टिव मीडियम। सो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एक्टिव मीडियम। देन और क्या कर रहा है ऑप्टिकल रेजोनेटर? इट मेक्स द एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, इसकी वजह मिरर की वजह से हो रहे हैं ना, तो मिरर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रेजोनेटर। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर? टू एम्पलीफाई द लाइट। लाइट को एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है ना, एक लाइट
एक दो फोटॉन्स थे उसको 50 फोटॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया with the help of optical resonator. Optical resonator की वजह से I have got a number of photons, so I can say that the amplification of light is taking place. Amplification हो गया light का. So यहाँ से एक intense beam outside में मिलेगा. This beam is called as the laser. Do you understand what is the use of optical resonator? What is the use of mirror? Mirror यानी optical resonator. So how the mirrors at the both the ends of active medium works? किस टाइप से काम करते हैं mirrors? So it works as an optical resonator. Do you understand? Yes, I understand. So in this lecture, we studied there is properties of laser, lasing action terms, कौन सी terms use करते हैं वो बताया मैंने. Spontaneous and stimulated emission study किया हमने. Elements of lasers देखा. Then optical resonator, how the optical resonator works, सब हमने study किया. Do you have any problem? Yes, sir. A Sir, question. optical. Yes, sir. So this is sufficient for today's lecture. Sir, Yes, I sir. have a question.